Now, P block including group number 13 to 18, including 14, 15, 16, 17 and 18 group. Out of which group 13, 14 and 15 we already studied in 11th class. Now, in 12th class we mainly focus on group 16, 17 and 18. Okay. Now, we will start with group 16. First of all, starting with elements. Okay. Now, group 16 of P block includes the following elements. Elements are oxygen, sulfur, selenium, tellurium and lastly polonium. Okay. And the atomic number are 8, 16, 34, 52 and lastly 84. Okay. Starting with electronic configuration. Now, general electronic configuration for the group 16 element is N, P, NS2, N, P, 4. Okay. Now, electronic configuration is very easy. First of all, you have to locate this number. Okay. This number is there is 6. It means that group 16 element include 6 electron in the valence shell. Now, out of which 2 are there and 4 are there. In this way, we can memorize this electronic configuration very easily. Now, go for the electronic configuration. Now, electronic configuration is very easy. Starting with 2s2 2p4. ठीक है, आपको सिर्फ एक नंबर को याद रखना है, उसके बाद सिर्फ आपको ये जो नंबर है इसको चेंज करना है. यू टू चेंज दिस नंबर ओनली लाइक दिस. 3s2 3p4 4s2 4p4 5s2 5p4 and lastly 6s2 6p4. Okay, before that we have to introduce one noble gas element here. Okay, that noble gas element will be that noble gas element which come before this element. Okay, and the noble gas elements are helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Okay, out of which we already crossed this one, and noble gas element before oxygen is neon. That's why we will put helium, neon, argon, krypton and xenon. Okay, this is the general electronic configuration for the group 16 element. Okay, now we will start with the periodic trends of these elements. Now, periodic trends means what? Whatever changes during in the periodic table from left to right and top to bottom. Generally, all these periodic trends are common for complete periodic table. It means that अगर आपने एक ग्रुप की periodic trend अगर स्टडी कर ली है तो आपको सभी ग्रुप की periodic trend वैसे के वैसे ही फॉलो करनी है with very minute changes. Okay, now फर्स्ट periodic trend अपन शुरुआत करते हैं फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट मीन्स वो नेचर में अपने ओवरऑल फॉर्म में कौन से फॉर्मेट में मिलता है. मीन्स लिक्विड है, सॉलिड है, ठीक है, या फिर गैसियस फॉर्मेट में. तो ओवरऑल व्हेन वी गो फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर present above and upper side of the periodic table are occurred in gaseous state. It means that oxygen occurred in gaseous state, but as we go down into the group, top to bottom, okay,
top to bottom, periodic trend is changes from gaseous to solid. Okay, it means that this element will occur in the gaseous state, जैसे कि O2, but from these elements sulfur, selenium, tellurium, polonium, these occurred in the solid state. Okay, this trend is followed by all the element except noble gas element like helium, neon, argon and the halogens अपन रिप्रेजेंट करते हैं X से, ठीक है। तो इनमें छोड़ के ये जो ट्रेंड है सभी ग्रुप्स में फॉलो होती है, यानी स्टार्टिंग वाले एलिमेंट आपको गैसियस स्टेट पे मिलेंगे, उसके बाद में सडनली आपको वो सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, लिक्विड स्टेट में नहीं मिलेंगे। सिर्फ ग्रुप 17 जो हाइड्रोजन का है, ग्रुप 18 जो नोबल गैस अपन जिसको बोलते हैं, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स अपने गैसियस स्टेट में ही मिलते हैं। ओके, सेकेंड इज एटॉमिक रेडिया, एटॉमिक साइज भी इसको बोलते हैं अपन, ठीक है। अपन साइज के हिसाब से लेंगे, एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज, ठीक है, दोनों एक ही है। When we go for the trend of atomic size as well as the ionic size, we will start with the atomic size first, from top to bottom as the atomic number increases। देखिए यहाँ पे top to bottom atomic number increase हो रहा है, it means that there is addition of electron in new energy level। It means that suppose we consider this is the nucleus of oxygen, okay, this is first shell and we go for the second one, this is the second shell, for this one sulfur third, selenium 4th, tellurium 5 and polonium 6. It means that there is a successive addition of the new energy level as we go from top to bottom in the group. It means that there is a continuous increase in the atomic size of these elements. It means that the periodic trend for the atomic size is that as we go down into the group from top to bottom, as the atomic number increases, atomic size is also increases due to एडिशन ऑफ द न्यू एनर्जी लेवल। देखिए यहाँ पे जो मैंने अपने नंबर चेंज किए थे 2 3 4 5 6, तो ये जो नंबर थे ये वही एनर्जी लेवल है जो अपन साइमल्टेनियसली एटॉमिक नंबर के साथ ऐड करते जा रहे हैं। इसका मतलब एक एक शेल वो बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या होगा कि एटॉमिक साइज बढ़ते ही जाएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नाउ व्हेन वी गो फॉर द नेक्स्ट वन, दोनों की ट्रेंड एक ही है, बस थोड़ा डिफरेंस है। अब आयोनिक साइज मीन्स व्हाट, whatever these element form ion, okay, this one, these are the ionic state, ठीक है। sometimes it will form positive ion also, ठीक है, in this case on polonium, okay, in this case the trend of ionic size is same as the trend of atomic size. It means that as we go down into the group, ionic size is also increases from top to bottom। okay, next trend we go for the density। Density from top to bottom as the atomic number increases, this is directly connected with the physical state, okay, as well as the atomic size both। now in physical we discuss about the oxygens occurred in the gaseous state, okay, and remaining element are occurred in the solid state। now as we know that the gaseous gases have a low density, but as well as the elements which solids have a higher density as compared to solid state। it means that from the physical state we can conclude that the density of the element of group 16 element is increases from top to bottom as there increase in the atomic number। it means that density is increasing from top to bottom। in this group oxygen having lowest density and the polonium having highest density। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बाद में आपको मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो जब अपन पढ़ने जाएंगे तो इसमें फिर से ये काम आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम एज वेल एज द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को तो पुल करता ही है, उसके साथ साथ जो एडजेसेंट एलिमेंट है उसके भी इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल करता है, उस टेंडेंसी को अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। नाउ इन ग्रुप 16 एलिमेंट
फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब अपन जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम हमेशा डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब डिक्रीज क्यों होगी, ये सीधा सीधा डिपेंड करता है इस फैक्टर के ऊपर, दैट इज एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। एटॉमिक साइज ये कैसे रिलेटेड है समझते हैं। अब देखिए, सपोज अपन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हो गया, ये उसकी पहली एनर्जी लेवल और ये उसकी दूसरी एनर्जी लेवल। देखिए जैसे अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। नाउ दिस एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल जिसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दिस इज मच क्लोजर टू द न्यूक्लियस। इट मीन्स दैट इट हैविंग strong attraction towards the nucleus, but as we go down into the group, there is increase in the energy levels. It means that the energy level are situated energy levels are situated apart from the nucleus. It means that as we go down into the group, atomic number increases and the distance from the nucleus towards energy levels is also increasing. It means that nucleus cannot pull these electrons effectively. That's why there is increase in the atomic size as well as decrease in the electronegativity. Electronegativity means what? This nucleus attract electron of self atom as well as the another atom is the tendency of the electronegativity. ठीक है। Now from this we can conclude that as there is increase in the atomic size, electronegativity from top to bottom is also decreases inversely proportional. एटॉमिक साइज को is inversely proportional to electronegativity, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। melting point slash boiling point. Now this can be explained very easily from the physical state itself. Now in physical state we already discussed that physical state is changing from the gaseous to solid directly. Okay, it means that the upper elements, the elements which are present at upper side of the group have low melting point as well as the boiling point, but as we go down into the group their nature is changing from the gaseous to solid. It means that the melting point and boiling point is increasing from top to bottom. It means as we go down into the group there is increase in the melting point as well as the boiling point in the group along with atomic number. Okay, next is ionization enthalpy. Now before you go for the trend, we must know that what is mean by the ionization enthalpy. Enthalpy means what? Energy. We are talking about some amount of energy. Ionization means generation, and ion means ion generation. It means that the energy required to generate ion, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जनरेट आयन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। सपोज अपन ये ऑक्सीजन एटम ले लेते हैं, न्यूट्रल है, ठीक है। अब ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। अगर गेन करता है तो क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। साइमल्टेनियसली अगर अपन इसको इलेक्ट्रॉन लूज अगर करते हैं, अगर फ्लोरीन के साथ होता है तो लूज अगर करता है तो ये होगा पॉजिटिव आयन। नाउ इन दिस केस, इन दिस पीरियोडिक टेबल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स दैट फॉर्मेशन ऑफ कैटायन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अलग ट्रेंड में जाएगा, ये अलग ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इट मीन्स दैट व्हाटएवर न्यूट्रल एटम generating cation by the losing of electron, and whatever amount of energy required to generate cation from the neutral atom, that amount of energy is called as ionization enthalpy. Now this can be easily explained from the electronegativity, atomic size as well as the physical state, ठीक है। अब देखते हैं इसको, इन तीनों पॉइंट को इससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं।
आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स व्हाट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, अपने को इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है उसके एटम से। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अब ये फैक्टर, ये जो है एनर्जी डिपेंड करती है दो फैक्टर के ऊपर। पहला है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब उसको निकालने के लिए अपने को उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। और दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स व्हाट, इट इज़ द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। इन शॉर्ट एटॉमिक साइज कम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा अगर है तो मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगने वाली है। ठीक है, तो इसको भी अब कंक्लूड करते हैं ना। अब ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे अगर अपन जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में तो यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनली। इसका मतलब क्या होगा, किसी भी एक फैक्टर को अपन कंसिडर कर लेते हैं, कोई भी एक, आप इसको कंसिडर कीजिए या फिर इसको कंसिडर कीजिए, एक ही हिसाब से चलिए। तो क्या होगा, एज देयर इज इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। जितना एटम का साइज बढ़ते जाएगा उतना ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन कम होते जाएगा, और जितना अट्रैक्शन कम होते जाएगा उतने इजीली अपन इलेक्ट्रॉन्स को उस एटम से निकाल पाएंगे टू फॉर्म अ कैटायन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अपन डायरेक्टली अभी ट्रेंड के ऊपर आते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम as there is increase in the atomic number there is increase in atomic size, that's why there is also decrease in ionization enthalpy। उतने ही इजीली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उतने ही इजीली उसका कैटायन वहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रेंड है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ वी कमिंग टू द इलेक्ट्रॉन gain enthalpy। Now as the name suggests, यहाँ पे क्या था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू जनरेट आयन। आयन मीन्स व्हाट, अपने को कैटायन के बारे में बात करनी थी। ठीक है, कैटायन कैसे होगा, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन है, इसका मतलब क्या होगा, देयर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, गेन होगा। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा ऑब्वियसली एनायन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे कैटायन फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे एनायन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नाउ अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी में अपन क्या बोल रहे थे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल रहे थे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज अ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कैटायन। नाउ इन दिस केस वी convert this point into, it is the amount of energy required to gain electron to form an ion from the neutral atom। okay, ठीक है, डेफिनेशन फिर से एक बार करते हैं। it is the amount of energy required to gain electron to form an ion from neutral atom is called as electron gain enthalpy। ठीक है, अब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन इजीली कब करेगा, जब उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कैपेसिटी हो। इसका मतलब क्या आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया। इसका मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतने ही उस एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर इनबिल्ट है। तो क्या होगा, इजीली वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे कम कौन सा है, पोलोनियम। टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होगा, एज वी गो into group from top to bottom, as there is decrease in the electronegativity, there is increase in electron gain enthalpy। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इस एलिमेंट में अपने को इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए बहुत कम एनर्जी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे अपन नीचे वाले एलिमेंट्स को प्रेफर करेंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए मुझे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे लगेगी, खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेटालिक कैरेक्टर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक नेचर बोल सकते हैं। ठीक है ना, मेटालिक नेचर अपन ने देखा था कि मेटल जनरली कौन से स्टेट में जाते हैं, वो होते हैं
सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे अपना फिजिकल स्टेट क्या था, ऊपर द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द कॉलम आर गैसेस स्टेट, एंड एज वी गो डाउन इनटू द ग्रुप दिस इंक्रीज इन द टफनेस, या फिर बोल सकते हैं हार्डनेस बढ़ती है, ऊपर से नीचे हार्डनेस बढ़ रही है, सॉलिड स्टेट में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, एज वी गो डाउन इनटू द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम देयर इज इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो ऊपर वाले जो एलिमेंट रहेंगे वो नॉन मेटालिक रहेंगे, नीचे वाले एलिमेंट जो रहेंगे वो हाईली मेटालिक इन कैरेक्टर रहेंगे, एंड समवॉट मिडल वाले जो एलिमेंट रहेंगे वो मेटालिक की कैटेगरी में आ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली नॉन मेटल से मेटल में कन्वर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है थोड़ा सा नॉन मेटालिक कैरेक्टर मेटालॉइड कैरेक्टर में आता है, ठीक है। ये दोनों नॉन मेटल, ये दोनों मेटल, और ये मेटालॉइड की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अपन यहाँ पे जो भी ट्रेंड देंगे ये एरोज की तरफ ध्यान दीजिए, ये एरोज अपन टॉप टू बॉटम में दे रहे हैं, और इस कैरेक्टर के बारे में ये बोल रहे हैं कि मेटालिक नेचर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसा उसका मतलब रहेगा। बाकी भी एलिमेंट, बाकी भी अपन ट्रेंड एक बार फिर से देख लेंगे, ओके। अभी अपन ने सारी पीरियोडिक ट्रेंड्स देखी है, एक बार इन सभी पीरियोडिक ट्रेंड्स को एक बार फिर से फास्ट में अपन कंक्लूड कर लेते हैं ना। पहली पीरियोडिक ट्रेंड थी आपकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में नेचर में एलिमेंट्स कौन से फॉर्मेट में अपने को मिलते हैं, इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड स्टेट, उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अपने को ये पहले वाले शुरुआत में गैस में मिलते हैं, उसके बाद में ये सॉलिड में मिलते हैं विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, ठीक है। टॉप टू बॉटम के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। टॉप टू बॉटम में ये सारी की सारी ट्रेंड आपकी टॉप टू बॉटम में जाएगी, ठीक है। उसके बाद में एटॉमिक साइज एज वेल एज द आयनिक साइज इज ऑलवेज इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इसको अपन डायरेक्टली एक सिंपल एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज और आयनिक साइज दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद में डेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद एटॉमिक साइज, जैसे से एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगा डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा एटॉमिक साइज के अपोजिट में चलती है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, वो हमेशा डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये इसका यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है। उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है एटॉमिक साइज के ऊपर। जितना एटॉमिक साइज बड़ा होगा उतना एटम के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब एज वी गो डाउन इनटू द ग्रुप टॉप टू बॉटम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर इंक्रीजिंग साइमल्टेनियसली। उसके बाद में अपन आते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ऊपर वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे। पर नीचे जैसे जैसे अपन जाएंगे तो क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को उतना पुल नहीं करेगा, इसका मतलब इजीली अपन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा डिक्रीज होती जाएगी टॉप टू बॉटम, उसके अपोजिट में, ठीक है, एटॉमिक साइज के अपोजिट में। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में चलता है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एग्जैक्टली ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये डिक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। ये तो एक कंक्लूजन हुआ, याद रखने का तरीका हुआ। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी देते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब अपन किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जा रहे हैं। ऑलरेडी उस एटम के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इजीली दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, गेन नहीं कर पाया तो अपने को उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम अपन जैसे से जा रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब अपने को इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसका मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। उसके बाद में लास्टली अपन आते हैं मेटालिक नेचर। मेटालिक नेचर क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों नॉन मेटल कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में टेलरियम, पोलोरियम ये मेटल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, और ये मेटालॉइड है, ठीक है। सेलेनियम मेटालॉइड की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पीरियोडिक ट्रेंड का पीरियोडिक ट्रेंड्स फॉर द ग्रुप 16 एलिमेंट।